السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ڈائس پر تشریف فرما ملت اسلامیہ کے خد آور علماء کرام، دانشور حضرات، ملک و ملت اور جماعت اسلامی کے قائدین، پونا شہر کے اس پبلک کانفرنس میں شریک خواتین و حضرات، بزرگوں اور نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پیارے بچوں، آپ کی اس آمد پر میں اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں اور میں آپ کو امت کے اس 1% لوگوں میں شمار کرتا ہوں جنہیں امت ہی کا نہیں اس ملک کا اور ساری انسانیت کا درد پایا جاتا ہے، جن کے سینے کے اندر ایمان منور ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانیت کی تعمیر کا عزم حوصلہ رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں پر یہ ہزاروں لوگ بھاری ہیں، اس لیے کہ سروں سے زیادہ سروں کے اندر جو عقل ہے اور دلوں کے اندر جو جذبہ ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. آج الحمدللہ انہی میں سے آپ لوگ ہیں. امت کا ایک سواد اعظم. میں ملک کے طول و عرض میں سفر کرتا ہوں، میں ملک کے ہر گوشے میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں ملک میں امت مسلمہ کے جوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بے حسی کا شکار ہے، جو حالات سے انکنسرنڈ ہے. انہیں کچھ نہیں پتا کہ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں جو چل رہے ہیں. ان کے صبح شام اور دن رات ویسے ہی گزر رہے ہیں. ان کی راتیں آباد ہیں. ہوٹلوں میں رونقیں پائی جاتی ہیں، راتوں میں ہاتھوں میں گیجٹ ہے لیے ہوئے بیٹھے ہیں. ریئل ورلڈ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، ورچوئل ورلڈ میں کنیکٹڈ ہیں. ریئل ورلڈ میں مسکراتے نہیں ہیں، لیکن ورچوئل ورلڈ میں ایموجیز ڈال رہے ہیں مسکرانے کی، تھمس اپ کی اور پھولوں کی. ماں باپ سے کٹے ہوئے، بیوی بچوں سے کٹے ہوئے، بھائی بہنوں سے کٹے ہوئے، یہاں تک کہ معاشی سرگرمی میں بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رہے ہیں، لیکن غفلت کے مارے ہوئے ہیں اور غفلت کے مدہوش نیند میں وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی حس، ان کے اندر کوئی جاگرتی، ان کے اندر کوئی اویئرنس نہیں پایا جاتا. یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے. امت مسلمہ کے نوجوانوں کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو مایوس ہے، جو مغموم ہے. آئے دن جو صورتحال اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں، کبھی سیاستدان ہیں جو نفرت کے بیج بوتے ہیں اور سیاست کا سیزن آتا ہے تو ووٹوں کی فصل کاٹتے ہیں. کبھی ہم اپنے عدلیہ کو دیکھتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں اور اس کا نام انصاف دے دیتے ہیں. کبھی ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں
کہ اس کا جو موضوع ہے, اس کا جو ایجنڈا فار پبلک ڈسکورس APD, اس پر میں انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں آؤں گا, وہ پورا APD یعنی ایجنڈا فار پبلک ڈسکورس وہ ہے جو اس ملک کا ریئل ایشو نہیں ہے, ریئل پرابلم نہیں ہے. اس صورتحال کو دیکھ کر ایک طبقہ نوجوانوں کا غم کا مارا ہوا ہے, ہوپلیس ہے, نا امیدی کا شکار ہے, غیظ و غضب کا شکار ہے, اور اس کا غیظ, اس کا غضب, اس کی چڑچڑاہٹ, اس کی ایموشنالٹی دیکھنا ہو تو آپ چلے جائیے اس کے سوشل میڈیا پر, اس کے فیس بک کے وال پر جا کر دیکھیے, واٹس ایپ کی اس کی رائٹنگز دیکھیے, امت کے علماء کے خلاف اس کی باتیں, امت کے مدارس کے خلاف اس کی باتیں, امت کے لیڈروں کے خلاف اس کی باتیں. مایوسی کے نتیجے میں وہ کہیں خیر نہیں دیکھتا. there is no light at the end of tunnel. یہ اس کی صورتحال ہے. امت کا ایک چھوٹا طبقہ ہے جو حساس ہے, جو سینسیٹیو ہے, جو ریسپانسبل ہے, جو اس ملک کی تعمیر کا جسے جذبہ پایا جاتا ہے. اور میں نے اسی لیے کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قوموں میں سے قوم نہیں جو صرف اپنی قوم کے لیے کام کریں, ہم برادریوں میں سے ایک برادری نہیں ہیں, ہم کمیونٹیز میں سے ایک کمیونٹی نہیں ہیں, ہم طبقوں میں سے ایک طبقے نہیں ہیں, ہم پارٹیوں میں سے ایک پارٹی نہیں ہیں, ہم ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی امت ہے. ہماری سوچ آفاقی ہوگی, ہماری سوچ یونیورسل ہو, ہمارا کنسرن ساری ہیومینٹی ہو. صرف مسلمانوں کے مسائل کا رونا, ہم وہ لوگ نہیں جو روتے بیٹھیں گے, بلکہ ساری انسانیت اس وقت جن مسائل سے الجھ رہی ہے, جن مسائل میں وہ ڈوبی ہوئی ہے, ان مسائل سے نکالنا ہماری ایمانی, ہماری شرعی اور ہماری منصبی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالی گئی امت ہو, تم بہترین امت ہو, ہم لوگوں کے لیے اٹھائی گئی امت ہے. ہمارا ایجنڈا لوگوں کی اصلاح کا ہونا چاہیے, لوگوں کی بھلائی کا ہونا چاہیے, زمین سے فساد کو دور کرنے کا ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. اس ایجنڈے کو جب ہم نے چھوڑ دیا اور ہم مایوپک ہو گئے, ہماری ساری سرگرمیاں, ہماری ساری جو کوششیں ہیں وہ صرف مسلم اور مسلم قومیت کی جب ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے نمائندے نہیں بن سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر ان دشمنوں کے لیے انہوں نے دعائیں دی تھی, ان کے لیے خیر کے لیے کام کرتے تھے, راتوں کی نیند آپ بیدار رہ کر ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہی اسوہ ہے کہ ہم اس ملک کی خیر خواہی اور بھلائی کے بارے میں سوچیں اور اس ملک کی صورتحال کو چینج کریں, یہاں کا نقشہ چینج کریں, یہاں کا ڈسکورس چینج کریں, یہاں کے ڈیبیٹس کو چینج کریں, یہاں کے ڈسکشنز کو چینج کریں, جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر زبردست تبدیلی آ سکتی ہے. یہ نہیں ہونے کے نتیجے میں آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو مغموم ہے. یہ جو اجتماع ہے, یہ اجتماع جماعت اسلامی کے ارکان و کارکنان کا نہیں ہے. یہاں کے جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں, ایک ایک گھر پر چڑھ کر ہمارے کارکنوں نے دعوت دی, اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کو توفیق دی وہ آج اجتماع میں شریک ہیں, اور ان کے سامنے یہ پیغام رکھنا ہے کہ تمہیں مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہوپلیس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وہن کا شکار نہ ہو, کمزوری کا شکار نہ بن جاؤ, اور غمزدہ نہ ہو جاؤ, خوف زدہ نہ ہو جاؤ, تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ غلبہ تمہارے لیے مقدر ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں نہیں کرنی ہیں اور دو چیزیں کرنی ہیں. دو چیزیں نہیں کرنی اور دو چیزیں کرنی ہیں. ڈونٹ ڈو, دو چیزوں کا تذکرہ کیا, ڈو کا تذکرہ دو چیزوں کا ذکر کیا. اور انہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صورتحال اس وقت مسلمانوں پر آئی ہے, اور ایک معنی میں مسلمان اس وقت ایٹ ریسیونگ اینڈ ہیں, ان پر مظالم ضرور ہو رہے ہیں, لیکن دیکھنے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مظالم ہمارے لیے چیلنجز ہیں, یہ ہمارے لیے اٹھانے کا, بیدار کرنے کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا منصوبہ ہے کہ امت کے اندر سے ان نفوس کو چن لیا جائے, ان نفوس قدسیہ کو سلیکٹ کر لیا جائے جو اس کے دین کے علمبردار ہوں گے. باقی خس و خاشاک کی
तरह बह कर चले जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को वो लोग अजीज होते हैं। ये जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आज तुम पर अगर ये दिन आ रहे हैं, गम के, परेशानियों के दिन, आप अगर रिसीविंग एंड पर हैं, आप अगर मजलूमियत का शिकार हैं और आपकी सूरत हाल इस वक्त नागुफ्ता भी है, तो याद रहना चाहिए यमसस्कुम खरहुन फक़द मस्सल कौम कर्रुम मिस्लु, आज तुम्हें चोट लगी है लेकिन तुम इस मुल्क में 1000 बरस तक हुक्मरान रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मौका दिया और शानदार तहजीब मुसलमानों ने यहाँ खड़ी की। यहाँ की इंसानियत के लिए मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। वेरी अनफॉर्चुनेट है कि मुस्लिम नौजवान उन सबसे वाकिफियत नहीं रखता। यहाँ मुसलमानों ने जो 1000 बरस हुकूमत किए, अदल का सिस्टम रहा, जस्टिस का सिस्टम रहा, मसावात का सिस्टम रहा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए इज्जत और तकरीम थी, औरतों की इस्मतों का तहफ़्फ़ुज़ होता था, माशी महंगाई मौजूद नहीं थी, लोगों के लिए जिंदगियां आसान थी, यहाँ स्पिरिचुअलिटी मौजूद थी, हर जगह औलिया किराम आए, हर जगह बड़े बड़े सूफिया आए। पूरे हिंदुस्तान में चल फिर कर देख लीजिए, आपको मालूम होगा कि उलमा और औलिया किराम और बुजुर्गों के सदक़े यहाँ दीन फैला और एक पूरा स्पिरिचुअल माहौल इस मुल्क के अंदर रहा है। और यहाँ की जो आम आबादी है उन्होंने इस्लाम को इसलिए कबूल किया कि इस्लाम के अंदर जो मसावात का पैगाम है वो मसावात यहाँ इस मुल्क में जो मजहब है उस मजहब के अंदर वो मसावात पाई नहीं जाती। एक बड़ा मुसन्निफ एम.एन. रॉय, उसने अपनी किताब में लिखा है द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, उसमें वो लिखता है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी, ये जो हमारे औलिया किराम थे, ये जो हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारे जो सूफिया किराम थे, उनके हाथों पर हजारों हजारों लाखों लाख लोग इस्लाम कबूल किए। वो मसावात का पैगाम था इस्लाम का, मसावात और सबकी भाईचारगी का पैगाम था। और एक बहुत बड़ा मुसन्निफ, एक इंटेलेक्चुअल इस बात की गवाही देता है हिंदुस्तान में इस्लाम फैलने की बेहतरीन वजह और बुनियादी सबब यह है कि इस्लाम की इक्वालिटी का सिस्टम पाया जाता था। मैं ये कह रहा था कि 1000 बरस तक मुसलमानों ने जो हुकूमत की है, यहाँ मुसलमानों ने नवाजा है इस मुल्क को, यहाँ की सोसाइटी को तहजीब दी है, कल्चर दिया है, आर्ट दिया है, फनून दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, लैंड रिफॉर्म्स मुसलमानों ने दिया, मार्केट इकोनॉमी मुसलमानों ने दिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जब हम दुनिया को देने के लायक नहीं हुए तो रिसीविंग एंड पर आ गए। ये जमाने के नशब फराज हैं जो अल्लाह ताला गर्दिश कराते रहता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया था और इस मुल्क को हमने नवाजा था, इस मुल्क को हमने संवारा था, इस मुल्क को हमने तहजीब दी थी, इस मुल्क में औरतों के मुकाम को ऊंचा किया था। वरना औरतों को तो लिबास पहनने का सलीका नहीं था, हक नहीं था। और जो औरतें ऊपर लिबास पहनती थी उन्हें टैक्स देना पड़ता था ऊपर लिबास पहनने के नतीजे में। ये सब चीजों को मुसलमानों ने खत्म किया, औरतों को जिंदा जलाया जाता था, यहाँ मुसलमानों ने सब चीजों को खत्म किया। तो मालूम होना चाहिए, कुरान बताता है ये जमाने के नशब फराज है। कभी आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया और कभी आप रिसीविंग एंड पर हैं। इसका मतलब नहीं है कि परमानेंटली सील हो गई है आपकी तकदीर, नहीं, फिर वापस आप गालिब हो सकते हैं, फिर वापस आप देने वाले बन सकते हैं, फिर आप वापस इस मुल्क को संवारने वाले बन सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो जज्बा पाया जाता हो, वो आइडिया पाया जाता हो। कुरान कहता है वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, याद रखो अगर जालिमों को अल्लाह ताला इख्तियार भी देता है तो उसकी कोई मशीयत होती है, उसकी कोई हिकमत होती है, वरना अल्लाह ताला जालिमों को तो पसंद नहीं करता। ये बेसिक बात है, ये उसूली बात है। मौका अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो उसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव अभी तैयार नहीं हुआ। जिस दिन अल्टरनेटिव तैयार हो जाएगा आप मुतबादिल के हिस्से से उठकर खड़े होंगे, मुल्क की तामीर का नक्शा देंगे, मुल्क की तामीर का प्लान आप देंगे, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बन जाएंगे। इस मुल्क को संवारने का एक और मौका अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। तो कुरान ने कहा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। आप देखिए कि हर जमाने का एक फिरौन पाया जाता था, हर जमाने का फिरौन कहते थे अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन अल्लाह ताला मुस्तकिल उन फिरौनों को कचो के लगाता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन को अल्लाह ताला ने सुरसरियां भेज दी, जुएं भेज दी, खून भेज दिया, मेंढक भेज दिया ताकि वो संभल सके। आज भी आप देखते हैं कि बीबीसी के 2 एपिसोड्स काफी होते हैं पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के लिए। यह अल्लाह ताला का इंतजाम होता है। कुरान कहता है हर जमाने का कारून था, खसफना बिही व बिदारिही दर्ज। कुरान कहता है कि हमने उसे यानी कारून को लश्कर पर, अपने साजो सामान पर, अपनी दौलत पर गर्रा था, गुरूर था, कहता था कि ये मेरे इल्म की वजह से, मेरी हिकमत की वजह से, मेरी प्लानिंग की वजह से, मेरी दानिशमंदी की वजह से मैंने ये दौलत कमाई है, और दौलत का अंबार लगा दिया था। उस जमाने में
स्टॉक मार्केट नहीं था। अगर स्टॉक मार्केट होता तो पता नहीं वो कहां पहुंचा हुआ होता। उस जमाने में बिलियनियर्स की फहरिस्त नहीं थी। अगर वो बिलियनियर्स की फहरिस्त होती तो शायद कारून 2 नंबर का होता या 1 नंबर का भी हो जाता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस कारून को जमीन में डुबो दिया। और आज के जमाने में जमीन में डुबोना नहीं है, अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स का डूब जाना ही जमीन में डूबने के बराबर होता है। $100 बिलियन का मेल्ट डाउन हो जाना एक दिन के अंदर, ये जमीन में धंसना नहीं था और क्या है? ये तबाही और बर्बादी नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह ताला के इंतजाम नहीं तो और क्या है? क्या आप इन सब चीजों को देखकर भी अब भी नहीं समझते कि अल्लाह ताला आपके साथ है? इस पूरी कायनात को वो चलाता है। जालिमों को खुले हाथ अल्लाह ताला ने छूट नहीं दे रखी है, तब तब अपना कोड़ा बरसाता है ताकि इंसान समझ जाए और समझ जाए। उनको भी कोड़ा बरसाता है, हमें भी कोड़ा बरसाता है, हम भी सुधर सकें, वो भी सुधर सके। अल्लाह ताला का इंतजाम है। इसके बावजूद अगर कोई गमजदा होता है, इसके बावजूद अगर कोई खौफ के अंदर मुब्तला होता है, होपलेस होता है, डिस्पेयर का शिकार होता है, मायूसी का शिकार होता है, तो वो अल्लाह ताला के मंसूबों को समझता नहीं। कुरान कहता है कि हम ये हालात इसलिए लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जानना चाहता है वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अल्लाह ताला जानना चाहता है कि तुम में कौन पक्के ईमान वाले लोग हैं, कौन मैदान में उतरकर काम कर सकते हैं, कौन दुनिया के सामने हक की गवाही दे सकते हैं, इस्लाम का परचम बुलंद कर सकते हैं, इस्लाम की दावत को दुनिया के सामने आम कर सकते हैं। ये देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये हालात को ले आता है। कुरान कहता है महज़िबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम समझते हो कि जन्नत में खरामा खरामा टहलते टहलते पहुंच जाओगे? वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अल्लाह ताला ने भी ये नहीं देखा कि कौन तुम में से है जो दीन की खातिर जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, मैदान में सरगर्मी दिखाएंगे। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है। ये हालात इसलिए लाता है, ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। इस चैलेंज को कबूल करके कौन अपनी जिंदगियों को बदलते हैं? सुबह शाम पेट के अतराफ तवाफ अगर करते रहें तो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं जो हम अंजाम देते हो। जानवर भी तो ये करता है, अपने पेट के लिए जिंदगी बसर करता है। जानवर भी तो अपने बच्चों के लिए जिंदगी बसर करता है। अगर हम भी अपने पेट के लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करते हैं तो जानवरों से जौहरी तौर पर हम बुलंद नहीं हो सके। जानवरों से जौहरी तौर पर उस वक्त बुलंद हो सकेंगे जब हम ईमान का मुजाहिरा करेंगे, खुदा के दीन की दावत को बंदगाने खुदा तक पहुंचाने के लिए मैदान में सरगर्म अमल होंगे। खुदा ताला देखना चाहता है कि कौन है तुम में से जो मेहनत करते हैं, कौन है जो तुम में से एक्टिव होते हैं, कौन है तुम में से जो सरगर्मी दिखाते हैं, और कौन है जो सब्र के साथ चलते हैं, डटे रहते हैं। सब्र का मतलब है अपने मकसद की तरफ लगातार बढ़ते चले जाना, दबना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं, बिकना नहीं। यह है दरअसल सब्र। सब्र का मतलब है अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, यह है वो आज का मरकजी मौजू जिसके तहत जो गुफ्तगू रखी गई है। अब आपके सामने मैं कुछ एक्शन प्लान रखना चाहूंगा, कुछ मैं आपके सामने वो बातें मैं रखना चाहूंगा जिसके नतीजे में इस मुल्क की तकदीर के बदलने में आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा है। ईमान से बढ़कर कोई सरमाया नहीं है और आप अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई बड़ा उसवा हमारे सामने मौजूद नहीं दुनिया में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में जिस तरह से काम किया, वैसे ही हालात आज हमारे सामने मौजूद हैं और उसी तरीके से हमें काम करने की जरूरत है। मैं आपको 2-4 एक्शन प्लान बताऊंगा। कुरान कहता है फलौला कान मिनल खुरूनी मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहाउना अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअ अल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फ़ीह वकानु मुजरिमीन। गौर से सुनिए, कुरान कहता है सूरह हूद के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह को तबाह किया, कौम आद को तबाह किया, कौम समूद को तबाह किया, कौम लूत को तबाह किया, कौम शुआइब को तबाह किया। मुख्तलिफ कौमों की तबाही के बाद आखिर में सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुनो, असल इश्यू ये रहा, असल प्रॉब्लम ये रहा कि उन कौमों में इस्लाह करने वाले, भलाई चाहने वाले, नेकी का काम करने वाले, फसाद से रोकने वाले लोग कम रहे।
क्यों ऐसा नहीं हुआ? फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनमें से क्यों उलू बक़िया का मतलब है खैर वाले, अहलुल्लाह, अल्लाह वाले, इंसानों की भलाई चाहने वाले, इस्लाह करने वाले क्यों लोग मौजूद नहीं थे? इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिन्हुम, हाँ कुछ लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने बचा लिया, बाकी पूरी कौम पर अल्लाह ताला ने अजाब का कोड़ा बरसा दिया, अजाब के अंदर उन्हें मुब्तला कर दिया। कहा कुरान ने, ये याद रखिए इस टुकड़े को, वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फी व कानू मुजरिमीन, अल्लाह ताला ने लोगों को जो खुशहाली दी, जो दौलत दी, जो रिफाहियत दी, जो साहिब सरवत बनाया, साहिब इज्जत बनाया, जिनकी इकोनॉमी अच्छी थी, जिनके पास स्टेबिलिटी मौजूद थी, कुरान ने कहा कि वो जालिम लोग थे जो सिर्फ अपने ऐश के अंदर मुब्तला थे, जमीन की इस्लाह का कोई मंसूबा उनके पास मौजूद नहीं था, इंसानों की तकदीर को बदलने के लिए उनके अंदर कोई वलवला, कोई अज़्म, कोई हौसला नहीं पाया जाता था। वकानु मुजरिमीन, यही लोग मुजरिम हैं। यानी समाज का जो क्रीमी लेयर है, समाज का जो अपर लेयर है, समाज का वो लेयर जो पढ़ा लिखा है, समाज का वो लेयर जो अल्लाह ताला ने जिसे दौलत अदा की है, अल्लाह ताला ने जिसे मनसब अदा किया, अगर उन्होंने समाज की इस्लाह की फिक्र नहीं की, मुल्क की इस्लाह की फिक्र नहीं की, इंसानियत की सूरत हाल को बेहतर बनाने की फिक्र नहीं की और अपनी दौलत में मस्त थे, मगन थे और ऐश के अंदर मुब्तला थे, कुरान ने कहा कानू मुजरिमीन, सुनो ये मुजरिम लोग हैं, ये असल में क्रिमिनल सी सोसाइटी के हक में, सोसाइटी की इस्लाह की इन्होंने कोई फिक्र नहीं की। अगर ये करते तो अल्लाह ताला कौम आद को तबाह नहीं करता, कौम सबूत को तबाह नहीं करता, कौम शुआइब को तबाह नहीं करता। ये आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि हर जमाने में उलू बक़िया पाए जाते हैं और वो कुछ ही लोग होते हैं, जिस तरह से यहाँ आज आप बैठे हुए हैं, कुछ लोग होते हैं जो मुट्ठी भर होते हैं और उन्हीं के जरिए से अल्लाह ताला इस्लाह पैदा कर देता है। कुरान बताता है कि तादाद की जरूरत नहीं है, कसरत की जरूरत नहीं है। वो कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ है कि कलील लोगों को अल्लाह ताला ने कसरत पर गलबा अता कर दिया, माइनॉरिटीज को अल्लाह ताला ने मेजॉरिटी पर गलबा अता कर दिया, बशर्ते कि मुल्क की तामीर का मंसूबा हो, मुल्क की तामीर का नक्शा उनके पास मौजूद हो। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी माना नहीं रखती, बल्कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर इस्लाह का जज्बा होना चाहिए, मुल्क की तामीर का नक्शा हो। तो कुरान हमें बताता है कि तारीख का मुताला करो, कितनी मर्तबा ऐसे हुआ है कि अल्लाह ताला ने कलील गुरोहों को कसीर गुरोहों पर गलबा अता फरमाया है। ये सूरह बकरा में सयक़ूल के बारे में आखिर में यह आयत आती है। तो एक्शन प्लान में यह है कि हमें उलू बक़िया बनना है। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, अल्लाह ताला किसी कौम को उनके जुल्म की पादेश में तबाह नहीं करता अगर उनके दरमियान इस्लाह करने वाले मौजूद हों, अगर उनके दरमियान मुस्लिहीन मौजूद हों, अगर उनके दरमियान इस्लाह करने वाले, अगर उनके दरमियान ऐसे लोग मौजूद हों जो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकते हों। प्रॉब्लम्स का रोना तो हर आदमी रोता है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल उसके लिए नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स का रोने के लिए कोई आईक्यू की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने के लिए हायर आईक्यू की जरूरत होती है, ऊंची जहानत की जरूरत होती है, अकल की जरूरत होती है, जज्बात में तवाज़ुन की जरूरत होती है, जहां आपको सल्यूशन देना हो। तो पहली बात एक्शन प्लान में यह है कि हम यहां से जाते हुए तय करके उठेंगे कि अल्लाह ताला हमारा नाम उलू बक़िया में लिख ले। 2023 के लोग जिन्होंने इस मुल्क की इस्लाह के लिए बेड़ा उठाया, जिन्होंने इस मुल्क की इस तामीर के लिए नक्शा दिया, ये उलू बक़िया में इस मजलिस में शरीक लोगों का नाम अल्लाह ताला शुमार कर ले तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हम मुस्लिहीन में शामिल हो जाएं, हमारा नाम अल्लाह ताला उनमें शुमार कर ले जो मुल्क के हालात की इस्लाह करने के लिए तगो दाव करते हो, जतन करते हो, दिन रात एक करते हो, संघर्ष करते हो, कोशिशें करते हो, एंडेवर्स करते हो, तो उन लोगों में हमारा नाम शुमार हो जाए जो मुल्क की इस्लाह चाहते हो। यह नंबर 1 है। अब उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 पर आऊंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा खवातीन को एड्रेस करूंगा। इस मुल्क में खवातीन की सूरत हाल मुसलसल लगातार अबतर होती जा रही है, गिरती जा रही है। किसी दिन औरतों की सूरत हाल बदलती हुई, बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। दावे बड़े बड़े हो सकते हैं, उन सब दावों को हम जुमलों में शुमार करेंगे,
بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایک جملہ سے زیادہ کچھ نہیں جائے گا کہ بیٹی کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے. دیکھا جائے گا کہ بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے والے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے مطابق حکومت حرکت میں آئے گی. کیا بلقیس بیٹی نہیں ہے؟ اس کے ریپسٹ کو وقت سے پہلے رہا کیا جائے, اپنے وطن پہنچنے پر پھولوں کا ہار پہنایا جائے, اور ان میں سے بعض لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے. کیا یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہے؟ انجلی سنگھ 1 جنوری کو بھی دلی میں ایک کار میں وہ پھنس گئی, کار کا ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی, اور 12 کلومیٹر تک اسے کھینچ کر پھرتے رہے. اس کے سارے کپڑے پھٹ گئے, اس کا سر پھوٹ گیا, اس کا بھیجا روڈ پہ پڑ گیا. بری حالت میں وہ ہاسپٹل میں پہنچی جبکہ وہ براڈ ڈیتھ تھی. لیکن اس کار میں اس پارٹی کا آدمی بھی تھا جو بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ کا نعرہ لگاتا ہے, اس لیے ان کے خلاف بہت زیادہ ایکشن نہیں ہوگا. اناؤ کی بیٹی کیا بیٹی نہیں ہے؟ کٹوا میں جس بیٹی کے ساتھ ظلم ہو, کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ آپ بتائیے کہ کیا یہ سب بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹی کی عزت کوئی نہیں بچا سکتا. نہ بی جے پی بچا سکتی ہے, نہ کانگریس بچا سکتی ہے, نہ کمیونسٹ بچا سکتے ہیں, نہ کوئی اور پارٹی بچا سکتی ہے, اس لیے کہ ان کے پاس عورتوں کے سلسلے میں وہ آئیڈیا ہی موجود نہیں ہے جو قرآن دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کو ایکول پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک نفس سے مرد اور عورت کو پیدا کیا, ان سے اللہ تعالیٰ نے خلق کثیر کو پیدا کیا, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیا. کہا کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. اللہ تعالیٰ نے تمہاری آواز کو سن لی اور تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. مرد عورت, ہاں وہ مرد ہو کہ عورت ہو, اور تم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہو, تم آپس میں ایک دوسرے کے پارٹنرز ہو, تم آپس میں ایک دوسرے کے کوآرڈینیٹرز ہو, تم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. خواتین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ رائٹس میں اور ریوارڈز میں مرد اور عورت میں ایکویلٹی. رائٹس اینڈ ریوارڈ, دنیا میں آنے کا حق جیسے مرد کو ہے ویسے عورت کو دنیا میں آنے کا حق ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مرد کو جیسے حق ہے ویسے عورتوں کو حق موجود ہے. معاش کے میدان میں سرگرمی دکھانے کا مرد کو جیسے حق ہے ویسے عورتوں کو بھی حق ہے. اور والدین اور رشتہ دار مر جائیں تو مرد کو جیسے میراث کا حق ہے ویسے عورتوں کو میراث کا حق ہے. شادی کے موقع پر کے لیے آپ کو جو حقوق ہیں ویسے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق عطا فرمائے. رائٹس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر بنایا اور ریوارڈس میں دونوں کو برابر بنایا. آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھے تو آپ کو بھی وہی اجر ہے, آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھے آپ کے لیے بھی وہی اجر ہے. رمضان کا 1 روزہ آپ رکھیں آپ کو بھی وہی اجر ہے, رمضان کا 1 روزہ یہ رکھیں ان کو بھی یہی اجر ہے. یہ حج کریں گی تو ان کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا آپ کو اجر ہے. اسلام نے بتایا کہ دے آر ایکولز رائٹس اینڈ ریوارڈ میں. رولز اینڈ ریسپانسبلٹی, یہ تو دنیا کا اصول ہے. رولز اینڈ ریسپانسبلٹی میں فرق ہونا, کی سیلری تو وقت پہ ملے گی لیکن رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز الگ ہے. کسی کا رول پرنسپل کا ہے, کسی کا رول ایچ ایم کا ہے, کسی کا رول پی ٹی ماسٹر کا ہے, کسی کا رول سائنس پڑھانے والی کا ہے, کسی کا رول عربی اور قرآن پڑھانے والی کا ہے. رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کی یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلا شرف عورت کو ملا. اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے حبشہ میں تو مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی ہجرت کی ہے. پہلی ہجرت حبشہ میں جب 11 مسلمان مرد گئے تو 4 خواتین نے بھی ہجرت کی. دوسری مرتبہ جب ہجرت حبشہ واقع ہوئی ہے تو اس وقت 83 مردوں نے ہجرت کی ہے تو 24 یا 25 خواتین نے بھی ہجرت کی ہے. ہر زمانے میں عورتوں نے رول پلے کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینی مجلس میں وہ شریک ہوتی تھی, مسجد میں وہ شریک ہوتے تھی, خطبات میں وہ شریک ہوتی تھی, جنگوں میں وہ شریک ہوتی تھی, معاشی سرگرمیوں میں وہ شریک ہوتی تھی, علمی سرگرمیوں میں وہ شریک ہوتی تھی. بتائیے, اٹھا کر دیکھ لیجئے, یہ مقام دنیا کی کوئی پارٹی عورتوں کو نہیں دے سکتی. یہ مقام آپ ہی دے سکتے ہیں, اس لیے کہ عورتوں کا مقام اسلام اونچا کرتا ہے اور آپ کے پاس اسلام کی دولت ہے, آپ کے پاس بلو پرنٹ موجود ہے. نمبر 3 مرد اور عورتیں, بالخصوص نوجوانوں سے میں کہوں گا
کہ आप इस मुल्क का नमक हैं, आप इस मुल्क के चेंज मेकर्स हैं, आप इस मुल्क की तकदीर हैं, आप इस मुल्क के मुसले हैं, और आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। जोहर से काम नहीं लिया जा सकता, इमोशन से काम नहीं लिया जा सकता, बल्कि इंटेलेक्चुअल स्टफ आपके पास मौजूद हो। कुरान ने कहा दो काम नहीं करना, वला तहीनु वला तहजनु। वहन कहते हैं, अगर आपको अंग्रेजी जबान में कहना चाहे तो लिमिटिंग बिलीफ है, ये ख्याल कि हम ये कर नहीं सकते, हमसे ये हो नहीं सकता, इसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। अगर औरत ये सोचे कि मैं औरत हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती, दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ, आप कर सकती हैं। अगर आप ये समझती हैं कि मैं उस उम्र में अंग्रेजी सीख नहीं सकता, दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ। कोई आदमी ये कहता है कि मेरी उम्र 60-70 हो गई, अब मैं कुरान की इस्लाह नहीं कर सकता, दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ। मैं मुल्क में खड़े होकर काम नहीं कर सकता, दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ। मैं पुलिस ऑफिसर से जाकर बात नहीं कर सकता हक की बात, दैट इज योर लिमिटिंग बिलीफ। तो कहा कि इससे बाहर आइए, इन लिमिटेशंस को तोड़िए, ये वहन है, ये कमजोरी है, जिस कमजोरी के साथ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया जा सकता। कहा कि इस वहन को तोड़ना चाहिए, इन शैकल्स को तोड़ना चाहिए, इन जंजीरों को तोड़ना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये मुझसे नहीं हो सकता, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस, आई एम अनेबल टू डू दिस। ये जो ख्याल है कि मैं कर नहीं सकता, इसको तोड़ना पड़ेगा। दूसरा है वला तहनु वला तहजनु, वहन और हुज़्न। हुज़्न कहते हैं अरबी में, हालांकि तर्जुमा लिखा हुआ गम। हुज़्न का मतलब है ऑल नेगेटिव इमोशंस। आप गुस्से का शिकार रहते हैं, नेगेटिव इमोशन है, ये फेल्यूर का सबब है। आप गमज़दा हैं, ये फेल्यूर का सबब है। आप मायूस हैं, ये फेल्यूर का सबब है। आप गिल्टी कॉन्शियस के अंदर मुब्तला हैं, ये फेल्यूर का सबब है। कुरान ने कहा इससे बाहर निकलिए, इमोशनैलिटी से बाहर निकलना है, नेगेटिव इमोशंस को दूर करना है। वो एंगर हो सकता है, वो सैडनेस हो सकता है, वो फियर हो सकता है, वो गिल्ट फीलिंग हो सकता है, वो डिस्पेयर हो सकता है, वो हर्ट फीलिंग हो सकता है, वो डिस्पिकेबल होना हो सकता है। बहुत से नेगेटिव सिफात है। कुरान ने कहा इन तमाम मनफी सिफात से बाहर हो जाइए, मनफी जज्बात से अपने आप को आरी कीजिए, पाक साफ हो जाइए। वला तहीनु वला तहजनु, इमोशनल नहीं होना है, रैशनल होना है। तो पॉइंट नंबर 3 मैं कह रहा हूं कि इल्म हासिल करने के लिए आप सर्कल बनाइए। लड़कों में 10 लोग जमा हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि हजारों लाखों का मजमा हो। 10 लड़के एक ग्रुप बनाइए, 10 मर्द एक ग्रुप बनाएं, 10 प्रोफेशनल्स एक ग्रुप बना लें, 10 डॉक्टर्स एक ग्रुप बना लें, 10 बिजनेसमैन एक ग्रुप बना लें, लड़कियां 10 लोगों के एक ग्रुप बना लें, होम मेकर्स 10 खवातीन मिलकर एक ग्रुप बना लें, 10 खवातीन टीचर्स मिलकर एक ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाइए और इस्लाम का मुताला कीजिए। मैं आपको इसमें जो आइडिया देना चाहता हूं, इस्लाम के खिलाफ 100 जो इल्जामात हैं उसे लिखिए बैठकर आज की रात। लिखिए इस्लाम के सिलसिले में जितने एतराजात हैं। इस्लाम दहशत का मजहब, लिख लीजिए। इस्लाम में औरतों को कोई इख्तियार नहीं, लिख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम उम्र लड़की से शादी की, लिख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से ज्यादा शादियां क्यों की, लिख लीजिए। इस्लाम तलवार से फैला, लिख लीजिए। आप 100 इतराजात को लिख लीजिए। रैशनली हर चीज का जवाब दिया जा सकता है। कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। एक खुदा क्यों है, हम जवाब दे सकते हैं। कुरान पक्का कलाम है, महफूज कलाम है, हम जवाब दे सकते हैं। 2 खुदा क्यों नहीं हो सकते, हम जवाब दे सकते हैं। इस्लाम में तलवार उठाने की कब और क्यों इजाजत दी गई है, हम अकल से दलील से समझा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज्यादा शादियों को क्यों इजाजत दी गई, हम अकल से दलील से समझा सकते हैं। कोई भी एतराजात हो जाए, आप पहले लिखिए। और आपको अपोलोजेटिक नहीं होना है, आपको माजरत खाना लैंग्वेज इख्तियार नहीं करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। आपको डिफेंस करना नहीं आता, आपके पास अकल नहीं है, आपके पास दलील नहीं है, आपका मुताला नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है। दलील की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, नॉलेज की बुनियाद पर हम हर एतराज का जवाब दे सकते हैं। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जवाब नहीं देने के नतीजे में नई नस्ल ज़हनी तौर पर मुर्तद हो रही है। नई नस्ल इस्लाम को ज़हनी तौर पर छोड़ रही है। नाम नहीं बदलते, लिबास नहीं बदलते, हुलिया नहीं बदलते, पासपोर्ट में अपना
अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके जहन में शुकूक व शुबहात थी। उसका जवाब आप नहीं दे सकते तो कौन दे सकते हैं, बताइए। और अब मैं आपसे कहता हूं, इत्तिहाद की जो बात हम करते हैं, इत्तिहाद के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाउ यूनिटी इज फॉर्म्ड, कैसे इत्तिहाद पैदा किया जाता है। इत्तिहाद पैदा करना इत्तिहाद का नारा बुलंद करने से पैदा नहीं होता, इत्तिहाद पैदा होता है मैदान अमल में सरगर्म होने के लिए। अगर आप रसूलुल्लाह पर जो इल्जामात लगाते हैं उस पर गुफ्तगू, मुझे बताइए कि क्या कोई तबलीगी जमात का आदमी कहेगा कि मैं इस मजलिस में नहीं आना, नहीं कहेगा कि मैं इस मजलिस में नहीं आना चाहता। मुझे बताइए कि क्या कोई बरेलवी मकतब फिक्र का आदमी कहेगा कि मैं इस मौजू पर बात करने के लिए नहीं आना चाहता। मुझे बताइए कि क्या कोई अहले हदीस कह सकता है कि मैं रसूलुल्लाह की इस्मत पर, अज़मत पर, आपके किरदार पर जो आज आ रहा है उस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं नहीं आना चाहता। ये वो प्रैक्टिकल इस तरफ से जब आप करने लगेंगे तो सारी उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा होगा। अब आप बताइए कि अगर माह रबीउल अव्वल आता है और आपने तय किया कि पूना के तमाम कॉलेजेस में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम कॉलेजेस में सीरत पर क्विज कंपटीशन रखेंगे, सीरत पर एस्से कंपटीशन रखेंगे, सीरत पर लेक्चर्स रखेंगे और हर जमात के आदमी को असाइनमेंट दे दीजिए, तो क्या कोई जमात का आदमी कह सकता है कि नहीं साहब हम रसूलुल्लाह की सीरत को गैर मुस्लिमों तक नहीं पहुंचाना चाहते? बताइए कोई मुसलमान कह सकता है? कहने के बाद उसका ईमान बाकी रह सकता है? तो आप बताइए कि इत्तिहाद से इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है कि सब मिलकर इस्लाम का मुताला करें, सब मिलकर इस्लाम की दावत को दुनिया के सामने पेश करें, सब मिलकर इस मुल्क के मसाइल को दरियाफ्त करें और उसका हल दरियाफ्त करें। यह इत्तिहाद का वो प्रैक्टिकल मेथड है जो हम दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। आप इस काम को लेकर आगे बढ़िए। कोई मकतब फिक्र का आदमी, कोई मसलक का आदमी नहीं कह सकता साहब ये जमात इस्लामी का काम है, हमारा काम नहीं। कोई कह सकता है? कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि ये मेरा काम नहीं है। हर साहिब ईमान, यहाँ औरतों पर जो मजालिम होते हैं, आए दिन मजालिम होते हैं, क्या ये यहाँ का इश्यू नहीं है? क्या इस मुल्क का करप्शन कोई इश्यू नहीं है? क्या आपके घर का कोई काम करप्शन के बगैर होता है? दुनिया के कई बड़े मसाइल मौजूद नहीं है? क्या छोटी जात के लोगों के साथ जुल्म नहीं होता? क्या जो ड्रेनेज क्लीन करते हैं उनके हुकूक अदा होते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन में वो काम करते हैं, इन ह्यूमन बिहेवियर उनके साथ होता है। क्या कभी हमने उसके बारे में आवाज उठाई है? और छोटी जात के लोगों को स्कूल में मारा जाता है, पीटा जाता है, कभी कभी बच्चों की मौत वाक़ हो जाती है। क्या इस मुल्क का ये इश्यू नहीं पाया जाता है? इस मुल्क के बेशुमार इश्यू नहीं। इस मुल्क का कितने बच्चे जो पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं इसलिए कि उन्हें वक्त पर दवाई नहीं मिलती। कितने लोग हैं जो गुर्बत के मारे हैं, कितनी औरतें हैं जो अपना जिस्म पालने के लिए अपनी इस्मत को बेचने पर मजबूर हैं, कितने बच्चे हैं जो सड़क की खाक छानते हैं। क्या इस मुल्क के मौजूदात नहीं है? तो एपीडी का मतलब है एजेंडा को कौन सेट करेगा। अगर एक छोटा सा तबका जो एजेंडा सेट करता है, इस मुल्क का असल इश्यू नहीं है, वो ना अजान है, ना हलाल गोश्त है, ना हिजाब है, ये इस मुल्क का इश्यू नहीं, ना रहे, बल्कि हम ऑफेंसिव तौर पर उस एजेंडे को लाएं जो इस मुल्क के हकीकी मसाइल हैं और इस्लाम के बाद उन सब का सोल्यूशन मौजूद है। इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। करप्शन के खिलाफ इस्लाम की तालीमात थी, ऊंच नीच के खिलाफ इस्लाम की तालीमात थी, औरतों की इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इस्लाम की तालीमात थी, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मजबूरों और लाचारों की मदद के सिलसिले में इस्लाम अपने मानने वालों को उभारता है और कहता है कि तुम्हारा ईमान नहीं है कि तुम पेट भरकर खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोए, तुम्हारा ईमान मशकूक है। ये इस्लामी तालीमात जो इस मुल्क के मसाइल का हल पेश कर सकती हैं। लेकिन हम हैं कि पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ पाते, हम सिर्फ मसाइल का रोना रोते। मैं हमेशा कहता हूं कि जो माँ अपने बच्चों की शिकायतें करती है वो नेगेटिव एटीट्यूड की माँ है। जो अपने बच्चों के मसाइल को जानती है और सलूशन दरियाफ्त करती है वो माँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। जो बाप अपने बच्चों के बारे में हमेशा डांट डपट करता है, उनकी बुराइयां बयान करता है, वो नेगेटिव एटीट्यूड वाला फादर है, नेगेटिव फादरिंग है। और जो बाप अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सलूशन लाता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का बाप है। वो बिजनेसमैन जो हालात का रोना रोता है वो नेगेटिव बिजनेसमैन है। और इन्हीं हालात में जो आदमी अपना रास्ता निकालता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का बिजनेसमैन है। हम चाहते हैं कि ये मिजाज हमारे अंदर पैदा हो, इस मुल्क का एजेंडा हम चेंज करें, एजेंडा ऑफ डिबेट हम चेंज करें, एजेंडा फॉर पब्लिक डिबेट एपीडी को चेंज करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने अपनी गुफ्तगू को तमाम की, मुकम्मल की। मैंने गुफ्तगू की शुरुआत की उस आयत से जिसमें हमें बताया गया कि गम करने की जरूरत नहीं है, बताया गया कि वहन करने की जरूरत नहीं है,
اور दो काम करने की जरूरत है, एक जिद्दोजहद करें और एक सब्र करें। सब्र के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें, डरे नहीं, दबे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, मायूस ना हो। सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, परसिवियरेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने हदफ की तरफ आगे बढ़ते रहें, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें और जिद्दोजहद करें, संघर्ष करें, कोशिश करें। ये चार काम ही, दो काम नहीं करने के और दो काम करने के कुरान ने बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुरान बताता है कि मुजरिम वो लोग हैं जो हालात को सुधारने के लिए कुछ कोशिश नहीं करते, और साहिब इस्लाह वो लोग हैं जो जमीन के फसाद को दूर करने के लिए अपनी भी साथ भर कोशिश करते हैं। क़यामत के दिन जब हम खुदा के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेगा कि हालात को तुमने चेंज किया कि नहीं किया। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा हालात को बदलने के लिए तुमने अपनी भी साथ भर कोशिश की कि नहीं। हम कहेंगे कि परवरदिगार हमसे यही हो सकता था कि हम 10 लोग मिलकर बैठते थे, लगे हुए थे, ये हमारा ग्रुप था। अल्लाह ताला के पास नजात के लिए यही काफी है। रिजल्ट ले आना हमारे हाथ में नहीं है, नतीजा बर्पा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कोशिश आपने की है तो बस अल्लाह ताला के पास कामयाब है। फिर मैंने बताया कि हमारे नौजवानों को इल्म हासिल करना है, रैशनैलिटी की बुनियाद पर इस्लाम का मुताला करना है, इमोशनैलिटी से बाहर आना है। फिर मैंने बताया कि इस मुल्क में जो मबाहिस किए जाते हैं वो असल में जो इस मुल्क के रियल प्रॉब्लम है उसे छुपाने के लिए इस तरह के मसाइल को लाया जाता है, हलाल गोश्त का और हिजाब का और अजान का, असल प्रॉब्लम पर पर्दा डालने के लिए। और उन्हें मालूम है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलकर मुख्तलिफ लोगों को जमा कर सकते हैं, लेकिन उनकी खाम ख्याली है। यहाँ अंडर करंट्स पाए जाते हैं, यहाँ बहुत से ग्रुप्स पाए जाते हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप उनका ताउन कीजिए, इस मुल्क की सूरत हाल के बदलने में आप कैटलिस्ट का रोल अदा कर सकते हैं। चार काम आपको करने के, जिस पर मैंने आपके सामने तफसील से गुफ्तगू रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुल्क में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला गम की कैफियत से बाहर निकाले, हमें कमजोरी की कैफियत से अल्लाह ताला बाहर निकाले, और अल्लाह ताला हमें जिद्दोजहद करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें वैल्यूज को अपहोल्ड करने वाला बनाए, सब्र के साथ अपने मैदान में लगे रहने की हमें तौफीक अता फरमाए, औरतों के हुकूक के लिए लड़ने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम का मुताला करने की हमें तौफीक अता फरमाए, इस मुल्क के एजेंडे को चेंज करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नुसरत फरमाए, मदद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।